وہ حنین کو کہتا ہوا وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ تم پورے جنگلی انسان ہو۔ حنین گردن سے نیچے سرخ نشان پر انگلی پھیرتی ہوئی بولی، سیریسلی بہت بڑا جنگلی ہوں میں، اور اس جنگلی پن کے نظارے تم وقفے وقفے سے ساری رات دیکھو گی۔ اظہار اپنی ایک ٹی شرٹ اس کی طرف اچھالتا ہوا بولا جو کہ حنین کے منہ پر جا گئی تھی، چاہو تو تھوڑی دیر کے لیے یہ پہن لو، ویسے زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں دوں گا اسے۔ آزاد آنکھ مارتا ہوا اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس کی باتوں سے حنین کو اب صحیح معنوں میں ٹینشن شروع ہو گئی۔ نوین تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ حنین اب آزاد کے نکاح میں ہے، کس حق سے جا کر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں اور اظہار سے کہوں تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ یہ میری بیوی کو برداشت نہیں ہو رہا؟ شاہنواز صوفے پر بیٹھا ہوا نوین کو مسلسل سمجھایا جا رہا تھا۔ نوین مسلسل کمرے کے چکر کاٹتی ہوئی شاہنواز سے ایک ہی بات کی بحث کر رہی تھی۔ شاہنواز آپ کو معلوم ہے ہنی کے لیے میں بہت ٹچی ہوں، میں ذات کو ہنی کے ہسبینڈ کے روم میں ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتی۔ اب خود کو میری جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، وہ میری ہنی کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے نا پھر میں کچھ کروں گی۔ شاہنواز کو اپنی طرف گھورتا ہوا دیکھ کر نوین بھی نڈر ہو کر بولی، ٹھیک ہے تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم وہ کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ شاہنواز آزاد کی نیچر بھی جانتا تھا اور اس وقت نوین کو بھی ضد چڑھی ہوئی تھی، اس لیے وہ نوین کو بھی اس کے ہار پر چھوڑ کر چینج کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ نوین اب دانتوں سے ناخن کاٹتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ اپنے موبائل پر اس کی نظر پڑی تو وہ آزاد کا نمبر ملانے لگی۔ آزاد چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو حنین کو اس کی شرٹ جو آزاد اسے دے کر گیا تھا پکڑے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ وہ چلتا ہوا حنین کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں، حنین نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی جس پر آزاد کے چہرے کے تاثرات سیریس ہوئے۔ کیا مطلب نہیں؟ آزاد حنین کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے حنین اسے کوئی جواب دیتی آزاد کا سیل بجا۔ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ آزاد نے اپنا موبائل اٹھایا، ایک اور ریسیو کی۔ تم کیا سمجھتے ہو آزاد، میری بہن کو اپنے نکاح میں لا کر آج تم نے میدان مار لیا، تم جیت گئی مجھ سے۔ آج جیت تمہاری نہیں ہوئی آزاد، بلکہ آج صحیح معنوں میں ہارے ہو تم، اور یہ ہار تمہیں اپنے بیڈ روم میں تو محسوس نہیں ہوگی۔ جاؤ جا کر اس وقت اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی صورت اپنی ہار دیکھو، کیونکہ شاہنواز تو آج میرے پاس ہے۔ نوین کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا موڈ نوین کی بات سن کر مزید بگڑا۔ او تھینکس مجھے یاد دلانے کے لیے، آج کا دن تو تمہارے لیے کافی اسپیشل تھا، تم نے اس گھر میں قدم جما لیے، مگر رات ابھی باقی ہے۔ ظاہری بات ہے اس رات کو لے کر حسین خواب تم نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ رات میں تمہاری کتنی اسپیشل بناتا ہوں یہ تم دیکھتی جاؤ۔ آزاد کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا حنین کے پاس آیا۔ کیا ڈیسائیڈ کیا ہے تم نے ہمارے رشتے کے بارے میں؟ آزاد حنین سے اسٹریٹ فارورڈ اس کی مرضی پوچھنے لگا۔ میں فوری طور پر ایکسیپٹ نہیں کر سکتی زبردستی کے اس رشتے کو، مجھے تھوڑا بہت ٹائم چاہیے، ابھی فوری میں کوئی ریلیشن نہیں بنا سکتی۔ حنین اپنے مضبوط لہجے میں مضبوطی لاتے ہوئے آزاد سے بولی۔ ویسے ہی آزاد نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ ریلیشن نہیں بنا سکتی تو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو، نکلو یہاں سے۔ آزاد اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ کھینچ کر بیڈ پر پھینکتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے کمرے سے باہر لے گیا اور شاہنواز اور نوین کے بیڈ روم کے دروازے پر حنین کو دھکا دیا۔ حنین آنکھوں میں حیرت سمائے آزاد کا غصے بھرا ریئیکشن دیکھنے لگی۔ اتنی تذلیل، اتنی ذلت اس نے تو کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اگر وہ فوری طور پر تیار نہیں تو آزاد نے اسے بے عزت کر کے اپنے کمرے سے ہی نکال دیا۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، وہ اب بھی دروازے پر کھڑا غصے میں حنین کو گھور رہا تھا۔ ہنی میری جان۔ کمرے کا دروازہ کھلا، نوین باہر نکلی اور حنین کو پکارتی اس کی طرف بڑھی۔ حنین ایک بار پھر آنسوؤں سے رونے لگی۔ کیا مسئلہ ہے آخر تمہارے ساتھ؟ آج کیا پوری رات تم نے ذلیل کرنا ہے ہمیں؟ یہ کیا بےہودہ طریقہ ہے؟ اب شاہنواز روم سے نکلتا ہوا آزاد پر دوبارہ چیخا۔ آزاد اسے کچھ کہے بغیر وجیہہ کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہنی میری جان چپ ہو جاؤ۔ نوین حنین کو اپنے روم میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ وہ حنین کے مسلسل رونے پر پریشان ہو گئی تھی۔ شاہنواز بھی اپنے بیٹے کے کارنامے پر شرمندہ ہوا صوفے پر بیٹھا تھا۔ حنین روتے روتے چپ ہونے کے بجائے بے ہوش ہو گئی۔ شاہنواز دیکھیں ہنی کو کیا ہوا اچانک؟ نوین ایک دم گھبراتے ہوئے شاہنواز کو کہنے لگی۔ اسے خود بھی رونا آنے لگا۔ شاہنواز صوفے سے اٹھ کر حنین کے پاس آیا اور نبض چیک کرنے لگا۔ مسلسل ڈپریشن کی وجہ سے شاید بی پی لو ہو گیا، جاؤ گلاس میں پانی لے کر آؤ۔ شاہنواز سائڈ ٹیبل کی دراز سے میڈیسن باکس نکالتا ہوا بولا۔ نوین اسے ریلیکس ہونے دو، صبح تک ٹھیک ہو جائے گی اور اب تمہیں بھی ریسٹ کرنا چاہیے۔ شاہنواز نوین سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟
नवीन शाहनवाज से पूछने लगी। दूसरे रूम में, वो मुख्तसर सा जवाब देकर कमरे से बाहर निकल गया। नवीन का दिल उदास हुआ। शाहनवाज किस तरह कमरे से जाने पर और अपनी बहन की हालत देखकर वो वार्डरोब से अपना एक ड्रेस निकालकर हनैन को पहनाने लगी। चाह क्या रहे हो तुम, सिर्फ ये बताओ मुझे। आज़ाद जो वजीहा के पास बैठा उसके आंसू साफ कर रहा था, शाहनवाज रूम में आता हुआ आज़ाद को देखकर पूछने लगा। पिछले 3 घंटे से उसने शाहनवाज का नाक में दम करके रखा हुआ था। यही कि आज रात आप अपने रूम में यहीं रहें डैड, आज ममा को आपकी ज़रूरत है। आज़ाद के लहजे में दरख्वास्त थी। शाहनवाज ने एक नज़र वजीहा की सुर्ख आंखों को देखा और फिर आज़ाद को। ठीक है, अब तुम सीधा यहाँ से अपने रूम में जाओगे। शाहनवाज आज़ाद से बोला और आज़ाद कमरे से निकल गया। शाहनवाज रूम का दरवाज़ा बंद करके वजीहा के पास आया। वजीहा यहाँ आइए। शाहनवाज बोलता हुआ बेड पर वजीहा के बहुत सारे शिकवे लिए शाहनवाज को देखने लगी। शाहनवाज ने खुद आगे बढ़कर उसे हज़ार में लिया तो वजीहा उसके सीने पर सर रखकर आंसू बहाने लगी। आज़ाद वजीहा के रूम से निकलकर अपने रूम में जाने के बजाय नवीन के बेडरूम में आया। ये कौन सा तरीका है कमरे में आने का। नवीन जो कि हनैन का ड्रेस चेंज करके ब्यूटी थी, आज़ाद को रूम में बगैर नौकी आता हुआ देखकर नागवार से बोली, इसे क्या हुआ हनी। वह नवीन की बात को इग्नोर करके हनैन को देखता हुआ उसे पुकारने लगा। हनैन बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी। तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। क्या किया है तुमने इसे कमरे में ले जाकर? बताओ मुझे, क्यों इसका बीपी लो हुआ है। नवीन आज़ाद के रास्ते में आकर उसे घूरती हुई पूछने लगी। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है तुम्हारा, हटो रास्ते से, देखने तो मुझे क्या हुआ है इसे। आज़ाद इसकी फजूल सी बात को खाते में ना लाकर उसे हटाते हुए हनैन के पास आया। इसको आराम की ज़रूरत है, तुम अभी फ़ौरन कमरे से बाहर निकल जाओ। नवीन का बस नहीं चल रहा था वह आज़ाद को शूट कर दे, इसलिए वो गुस्से में पकारती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे, वापस लिटाओ इसे। आज़ाद नवीन की बात का कोई जवाब दिए बगैर हनैन को अपने बाजू में उठाता हुआ अपने बेडरूम में ले जाने का इरादा रखता था। इसे आराम की ज़रूरत है तो ये आराम अपने कमरे में करेगी, यानी मेरे कमरे में। आज़ाद नवीन को देखकर जताता हुआ बोला। अगर इतनी ही परवाह थी तो इसे यहाँ फेंका क्यों था। नवीन दांत पिसती हुई आज़ाद को बोली, मेरी मर्ज़ी। आज़ाद 2 लफ्ज़ों पर जोर देकर दरवाजे से बाहर निकलने लगा। तुम इसके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे। देखो इस वक्त इसे आराम की ज़रूरत है, प्लीज़। नवीन बेबसी से बोली, क्योंकि अभी दोबारा शोरगुल होता तो शाहनवाज आकर यकीनन अब की बार नवीन पर गुस्सा करता। उल्टा सीधा करना होता तो निकाह के चक्कर में नहीं पड़ता। अब तो जो भी होगा सीधा सीधा होगा। आज़ाद अपनी बातों से उसे पतंगे लगाने लगा, जिस पर नवीन का दिल चाहा वो उसका मुंह तोड़ दे। मुझे उम्मीद है ये रात तुम हमेशा याद रखोगी। आज़ाद दरवाजे पर पहुंचकर नवीन की तरफ देखकर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने सोच लिया था आज रात वो अपने बाप को इस औरत के पास टिकने नहीं देगा, इसीलिए उसे हनैन को अपने कमरे से निकालना पड़ा। उसका दिल दुखा होगा आज़ाद जानता था, मगर वो सुबह हनैन को मना लेगा वो ये भी जानता था। मुसलसल अपने आप को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस करके सोते हुए हनैन की आँख खुली। वह अपने आप को दोबारा आज़ाद के कमरे में मौजूद पाकर हैरान परेशान हो गई। आज़ाद अभी भी दाहिने हाथ के कोहने तकिए पर टिकाई हनैन की तरफ करवट लिए उसको हैरान परेशान होता देख रहा था। मुझे सारी रात बेचैन करके बहुत गहरी नींद ली है तुमने, वो उंगलियों के पोरों से नरमी से हनैन का गाल छूता हुआ बोला। हनैन उसका हाथ झटक उठने लगी, मगर हनैन के उठने से पहले आज़ाद ने अपना बायां हाथ हनैन के ऊपर से ले जाकर मैट्रेस पर रखा। आज़ाद का हाथ हनैन को छू तो नहीं रहा था, मगर अब वो उठने की कोशिश करती तो आज़ाद का हाथ उसके सीने से टच होता। मैं तो आप ही के पास थी ना, क्यों लेकर आए हो मुझे वापस अपने बेडरूम में, और ये मेरे कपड़े कितने चेंज किए। हनैन उसके करीब लेटी हुई हैरत से उसे देखकर पूछने लगी। रिश्ता जो ऐसा बना लिया है तुमसे, फिर भला क्यों तुम्हें किसी और के कमरे में रहने देता। बेफिक्र रहो, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी बहन ने चेंज किए हैं। अगर मैं चेंज करता तो तुम अपने अंदर भी बहुत सी चेंजिंग महसूस करती। दूसरा, इस वक्त मेरी टी शर्ट में मौजूद होती। वो जितनी संजीदगी से हनैन से बात कर रहा था, हनैन ने उसकी मैंने ख़ेज़ बात पर घूर कर उसे देखा। ड्रामे बंद करो अपने, ऐसी बात होती तो मुझे अपने कमरे से निकालते ही नहीं। हाथ पीछे हटाओ, अपना उठना है मुझे। हनैन नाराज़ लहजे में उसे बोली। रात वाली अपनी तौहीन वो अभी तक नहीं भूली थी। ड्रामे मैं नहीं, ड्रामे तुम कर रही हो, और वो भी कल रात से। ये हाथ तो नहीं हटेगा, हिम्मत है तो तुम खुद हटा कर दिखाओ, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। वो हनैन के नाराज़ चेहरे को देखकर बहुत प्यार से चैलेंज करता हुआ बोला। मैंने तुम्हें कल रात भी बता दिया था, ज़बरदस्ती में जोड़ा गया रिश्ता मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वैसे भी तुमने मुझसे मेरी बहन का बदला लेने के लिए निकाह किया है। ऐसे रिश्तों में कहाँ पायदारी पाई जाती है भला।
हनैन एक बार फिर उसको जिताती हुई बोली, तुम्हें अभी भी यही महसूस हो रहा है? ये निकाह सिर्फ मैंने तुमसे तुम्हारी बहन का बदला लेने के लिए किया है? आज़ाद गहरी नज़र उसके चेहरे पर मरकूज करता उससे संजीदगी से पूछने लगा। उसका अंदाज़ा लब व लहजा देखकर हनैन का दिल ज़ोर से धड़का। तो फिर और किस लिए किया है मुझे मालूम है? मुझे क्या मालूम? हनैन उससे नज़रें चुराती हुई अनजान बनकर बोली। छोटे छोटे कद की बीवी मिले तो इतना अफसोस नहीं होता, मगर अकल उसकी छोटी हो तो आदमी की किस्मत ही फूट जाती है। आज़ाद ने जितनी संजीदगी से बोला, हनैन ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। हनैन के तपे हुए चेहरे को देखकर आज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। ये दूसरी बार है और बहुत ज़्यादा हो गया है। वह कल से ही उसकी हाइट पर टॉन्ट किया जा रहा था। हनैन बुरा मानती हुई बोली, और अब जो पहली बार होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। आज़ाद हनैन के होंठों को फोकस करता हुआ मैंने खाइजी से बोला। हनैन के ऊपर से अपना हाथ हटाकर हनैन को खुद से करीब करके वो उस पर झुका। आज़ाद प्लीज़। वह कल रात की तरह आपकी बार उसके होंठों को निशाना बनाना चाहता था। हनैन घबराती हुई बोली, घबराओ नहीं, ये डिसेंट स्टाइल में है। आज़ाद हनैन की घबराहट को देखता हुआ उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरता हुआ बोला। वो अपने होंठ हनैन के होंठों के करीब लाया। हनैन ने कस की आंखें बंद की, जिस पर आज़ाद के लब हल्के से मुस्कुराए। बहुत नरमी से उसने अपने होंठों से हनैन के होंठों को अभी छुआ ही था, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। वो जो सांस रोके लेटी हुई थी, आज़ाद के बेड से उठने पर अपनी सांस बाहर करके खुद भी उठ बैठी। कहाँ है मेरी बहन? तुम जाग गई? मेरी जान, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम ठीक हो ना? आज़ाद के दरवाज़ा खोलते ही नवीन बिजली की रफ्तार से अंदर आई और एकदम बोलती हुई हनैन के पास आई। आज़ाद सुबह ही सुबह उसकी शक्ल देखकर बदमज़ा हुआ था। अब नवीन हनैन के ऊपर से नीचे तक देखती उसके हाथ और कंधे टटोल रही थी। आप ही मैं ठीक हूँ। हनैन बेड पर बैठी हुई बस इतना ही बोलकर उसे मुतमईन कर सकी। कर लिया अच्छी तरह चेकअप? कहीं से कल रात में ऐसे तोड़ा फोड़ा नहीं है? अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस कमरे में आने की कोशिश मत करना। आज़ाद मिनट भर भी उसकी बेइज्जती करता हुआ बेड की दूसरी साइड पर गया। सिगरेट मुंह में लेकर लाइटर से उसे जलाने लगा। मैं तुम्हारे इस कमरे पर और तुम्हारी शक्ल पर थूकती हूँ। समझते क्या हो अपने आप को तुम घटिया इंसान? यहाँ मैं सिर्फ अपनी बहन को लेने आई थी। चलो हनी। नवीन ने आज़ाद को जवाब दिया। उसके बोलने पर हनैन बेड से उठी। नवीन की बात सुनकर आज़ाद खामोशी से उसकी शक्ल देखने लगा। नवीन भी उसकी आंखों में आंखें डाले बेखौफ होकर से देख रही थी। अचानक ही हाथ में मौजूद लाइटर खींचकर आज़ाद ने नवीन की तरफ दीवार पर दे मारा, जिस पर नवीन ने अपना चेहरा बेसाख्ता साइड पर किया और हनैन के मुंह से चीख निकली। लाइटर सामने दीवार पर लगा। आज़ाद की हरकत पर जहाँ नवीन ने गुस्से में उसको देखा, वहीं अफसोस से हनैन ने उसका नाम पुकारा। क्यों उठी तुम बेड से? खामोशी से बैठो वापिस। वो हनैन को आंखें दिखाता हुआ ऐसे बोल रहा था। हनैन को लगा जो थोड़ी देर पहले आज़ाद उसके करीब था वो जैसे कोई और उसका कोई हमशक्ल हो। उसकी आंखें दिखाने पर हनैन खामोशी से बेड पर बैठ गई तो नवीन को और गुस्सा आया। ये मत समझना कि मैंने निशाना चौक किया। आइंदा मुझसे ज़ुबान संभाल कर बात करना, वरना तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ने में ना ही मुझे कोई शर्मिंदगी होगी ना ही अफसोस। अपनी औकात में रहो, सिर्फ मेरे बाप की बीवी हो तुम, वरना तुम्हारी हैसियत मेरे सामने इस घर के नौकरों से भी गई गुजरी है। आज़ाद गुस्से में नवीन को देखता हुआ बोला, मेरी क्या औकात है ये तुमने खुद अपने मुंह से बताया है। यानी शाहनवाज की बीवी हूँ मैं, और तुम्हारी क्या औकात है ये मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगी। आज़ाद, एक बात और भी याद रखना, मैं तुम्हें अपनी बहन की ज़िंदगी में हर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत जल्द इसकी ज़िंदगी से निकाल दूर रखूँगी। नवीन ने जैसे आज़ाद को बोला ही नहीं बल्कि खुद से वादा भी किया था। उसकी बात सुनकर आज़ाद तंजिया हंसा। मेरे बाप की बीवी बनकर भी तुम्हारी औकात 2 पैसे के बराबर ही है। आज़ाद को उसकी औकात याद दिलाने वाला तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और जिस तरह तुम मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं भी तुम्हें अपने इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत जल्द दफ़ा करूँगा तुम्हें इस घर से, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे कमरे से दफ़ा होना होगा। आज़ाद बोलता हुआ नवीन के पास आया, उसका बाजू पकड़कर खींचता हुआ कमरे से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद किया। आज़ाद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें आप ही के साथ इस तरह का बिहेव करते हुए। तुम्हें उस दिन किसी ने गलत बोला था कि वो अबॉर्शन करवाने गई हैं, ही इज़ प्रेग्नेंट, और तुम उनके साथ। हनैन की बात सुनकर वो चौंका, मगर हनैन मज़ीद कुछ बोले वाशरूम में चली गई। दादा बनने की उम्र में बाप बनने का शौक़ चढ़ा है इन्हें। आज़ाद वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए नागवारी से सोचने लगा। रुक क्यों गई? आओ ना। आज़ाद ने पीछे मुड़कर हनैन को मुखातिब किया। वो खुद तो ऑफिस जाने के लिए फुल ड्रेसअप नज़र आ रहा था, मगर हनैन को अपना हुलिया इस वक्त अजीब मुज़ायका खास लग रहा था। उसने कल रात वाला नवीन का वाइट कुर्ता ट्राउज़र पहना हुआ था। कुर्ता काफ़ी ढीला और घुटनों से ऊंचा था। बाल ब्रश के
करके उसने चुटिया की शेप में बल देकर ऐसे ही छोड़ दिया था। और उसके पैरों में अज़हर की स्लीपर्स मौजूद थी, क्योंकि उसकी अपनी हील्स शायद नवीन के रूम में थी। नाश्ते की टेबल पर इस वक्त अज़हर के पेरेंट्स के साथ नवीन भी मौजूद थी। वो इस वक्त थोड़ी नर्वस हो रही थी, मगर अज़हर के बोलने पर छोटे छोटे कदम उठाती उसके साथ डाइनिंग टेबल पर आई और आहिस्ता आवाज़ में सलाम किया। आओ हनी, यहाँ बैठो। नवीन ने अज़हर के साथ हनैन को आते देखा तो उसे अपने पास कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। हनैन के लिए वैसे भी सब अजनबी थे, वो नवीन के पास ही बैठना चाहती थी, इसलिए उसके पास जाने लगी। हनी, यहाँ आकर बैठो। अज़हर की आवाज़ पर हनैन के साथ बाकी सब अज़हर की तरफ देखने लगे। मैं आप ही के साथ ज़्यादा कम्फर्ट। हन्नान ने शाहनवाज और वजीहा की मौजूदगी का लिहाज करते हुए अज़हर को आहिस्ता आवाज़ में बोलना चाहा। यहाँ बैठो। अज़हर अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। उसकी आंखों को देखकर हन्नान उसी के पास रखी हुई चेयर पर बैठ गई। नवीन को सख्त जहर लग रहा था इस वक्त अज़हर का उसकी बहन पर कब्जा जमाना। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। अगर वो अपनी बहन के पास बैठना चाहती है, बीवी वो तब भी तुम्हारी रहती बेटा। इन छोटी छोटी बातों को इश्यूज नहीं बनाना चाहिए। आइंदा ख्याल रखना। वजीहा आराम से अज़हर को समझाने लगी। ओके मामा, आइंदा ख्याल रखूँगा। ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अज़हर ने इतने प्यार से और ताबेदारी से वजीहा से बात की, नवीन और हनैन दोनों ने चौंक कर देखा। ठीक है मेरी तबीयत, चलो नाश्ता स्टार्ट करो। वजीहा अज़हर को देखती हुई उसके बराबर में बैठी हनैन को भी देखने लगी। ओहो, कल रात तारुफ तो रह ही गया था। मामा, यह है हनैन, आपकी बहू मिसिस अज़हर। दिखने में ये क्यूट है, मगर इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। सबके सामने ये खामोश रहती है, मगर अकेले में इसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। आज़ाद हल्की सी स्माइल के साथ हनैन को देखता हुआ कहने लगा तो हनैन ने उसे घूरा। ये मंजर देखकर जहाँ वजीहा और शाहनवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वहीं नवीन गुस्से में हनैन को देखने लगी। और हनी डियर, ये है मेरी जन्नत, इस घर की असली मालकिन प्लस क्वीन। क्यों डैड, सही बोला ना मैंने? आज़ाद ने हनैन से वजीहा का तारुफ करवाता हुआ शाहनवाज से पूछने लगा। इसमें कोई शक नहीं है, वजीहा वाकई इस घर की मलका है। शाहनवाज वजीहा का टेबल पर रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रखता हुआ बोला। वजीहा शाहनवाज को देख रही थी, उसके चेहरे पर वजीहा को देखकर मुस्कुराहट थी। आज़ाद इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि नवीन का चेहरा उतर गया और अपनी बहन को देखकर हनैन का भी। मगर उसे वजीहा बहुत अच्छी लगी, पुरवकार सी शख्सियत रखने वाली, धीमे लहजे में बात करने वाली। नवीन बेदिली से अपने पास रखे प्लेट से सैंडविच उठाने लगी, मगर अभी उसका हाथ फिज़ा में ही था कि उसके सामने से सैंडविच वाली प्लेट अज़हर उठा चुका था। ले मम्मा, सैंडविच खाए। अज़हर वजीहा की प्लेट में सैंडविच रखता हुआ बोला। अज़हर की हरकत पर नवीन का खून खोला था। वो उसकी कमज़ोरी जान चुकी थी, सामने बैठी हुई उसकी माँ। अब उसे अज़हर की कमज़ोरी को अपने काबू में करना था, तभी तो अज़हर से अपनी कमज़ोरी यानी हनैन वापस ले सकती है, जिसके बलबूते पर वह कल से अकड़ रहा था। ऐसे क्यों बैठी हो, नाश्ता करो। उसे शाहनवाज की आवाज़ आई, साथ ही नवीन की गोद में रखा हुआ हाथ शाहनवाज ने अपने हाथ में थामा, जिस पर शाहनवाज और नवीन ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। अस्सलाम वालेकुम। टेबल पर मौजूद सब अफराद नाश्ता कर रहे थे। वह अब्बास की बात पर सब ने चौंक कर उसे देखा। अब्बास ने दो नए चेहरे देखे तो वह कन्फ्यूज़ हुआ। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? आओ नाश्ता करो हमारे साथ, वजीहा ने अब्बास को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वजीहा, ख्याल किया करें, फैमिली बैठी है। शाहनवाज ने बेहद आहिस्तगी से वजीहा को बोला था। शाहनवाज को यूँ हर ऐरे गैरे को फ्री करना अच्छा नहीं लगता था। वो भी फैमिली की तरह है डैड। अब्बास आओ यार, परसों से तो मुलाकात ही नहीं हुई तुमसे। अज़हर ने भी बेहद आहिस्तगी से शाहनवाज को कहते हुए आवाज़ अब्बास को बुलाया, जो शायद नवीन और हनैन को देखकर झिझक रहा था। नहीं, बस मैं कोमल के बारे में पूछने आया था, शाम में चक्कर लगाऊंगा। अब्बास आज़ाद को जवाब देता हुआ बोला। अच्छा, हमारे घर के नए अफराद से तो मिलते जाओ। यह है मिसिस शाह नवाज़, डैड की दूसरी वाइफ, और ये है मिसिस अज़हर यानी मेरी वाइफ। अज़हर ने नवीन और हनैन का बात से तारफ़ करवाया, मगर वह खामोश बैठी हुई वजीहा को देखने लगा, जो पीके से अंदाज में उसे देखकर स्माइल दे रही थी। अब्बास मुस्कुरा भी नहीं सका। ओके, शाम में मिलते हैं, अभी चलता हूँ। अब्बास को वहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा। वैसे भी वो शाहनवाज की मौजूदगी में कम ही आता था, क्योंकि उसे महसूस होता था अज़हर के डैड उसे पसंद नहीं करते थे, या फिर वो हर एक से फ्री नहीं होते थे। कौमी, कम बेबी, भाई के पास आओ। अज़हर कोमल को देखता हुआ बुलाने लगा। टेबल पर सबकी तवज्जो कोमल के कमरे की तरफ गई, जो कमरे के दरवाजे से सर निकाल के सबको देख रही थी। अज़हर के बोलने पर झट उसने सर अंदर करके दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया। शायद नवीन और हनैन दोनों के नए चेहरे देखकर वो चुप गई थी। अज़हर अपनी कुर्सी से उठकर कोमल के रूम में चला गया।
کیا میں کومل سے جا کر مل سکتی ہوں؟ وجیہہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نوین اس سے مخاطب تھی۔ شاہ نواز نے بھی چونک کر نوین کو دیکھا۔ میرے دونوں بچے میرے برعکس تھوڑی ریزرو نیچر کے ہیں، جلدی کسی سے گھلتے ملتے نہیں، ٹائم لگتا ہے انہیں۔ تم کوشش کر کے دیکھ سکتی ہو۔ وجیہہ نے نوین کو دیکھ کر جواب دیا، جس پر نوین اسے دیکھ کر مسکرائی۔ دونوں ہی پاگل بچے ہیں، نوین دل ہی دل میں بولتے ہوئے کومل کے کمرے میں چلی گئی۔ قومی کو بھائی نے بلایا؟ بھائی کے پاس کیوں نہیں آئی قومی؟ آزاد اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی کومل کو دیکھتا اور پوچھنے لگا۔ صبح صبح کون آ گیا ہے بھائی؟ قومی کسی کو نہیں جانتی۔ کومل پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں دو پونیاں باندھے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے آزاد کو بولنے لگی۔ ہیلو کومل، کیسی ہو؟ پہچانا تم نے مجھے؟ آزاد اس سے پہلے کومل کو حنان کے بارے میں بتاتا نوین کومل کے کمرے میں آتے ہی کومل کو مخاطب کر کے بولی۔ آزاد نے مڑ کر ناگوار نظروں سے نوین کو دیکھا۔ نہیں آنٹی، کومل نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کومل نوین کو اپنی بات کا یقین دلانے لگی۔